हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल। पिज़्ज़ा का नाम आते ही हम सबके दिल में एक बड़ी अच्छी सी गुड फीलिंग आने लगती है। तो आज हम बनाने वाले हैं व्हीट पिज़्ज़ा। आई होप यू लाइक माय रेसिपी। तो सबसे पहले लेट्स नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स फॉर द पिज़्ज़ा बेस, ऑल्सो व्हाट ऑल विल वी बी नीडिंग फॉर द फिलिंग। And these are the ingredients required for the pizza sauce and the topping. Now pizza sauce अगर आपके पास टाइम है तो आप बना लीजिए जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ. Otherwise you can use tomato sauce also as the pizza sauce. And for the topping I have taken whatever ingredients I had with me. आप इसमें कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं. And if you want a non-veg topping तो आप इसमें चिकन या फिर मटन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. So let's start with making the dough. तो इसके लिए I have taken 1 cup of refined flour, that is maida, 1 cup of wheat flour, that is atta, 2 tablespoons of dahi, about quarter to half spoon of salt, 1 teaspoon of sugar, half teaspoon of mint powder, that is पुदीने पत्ते का powder, baking powder 1 teaspoon, 1/4 of a teaspoon baking soda. Now let's start. सबसे पहले हम बोल में सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिला देंगे. The आटा, मैदा, दही, salt, sugar and dry mint powder, baking powder and cooking soda. Now with the help of a spoon I am going to mix all these ingredients properly जब तक सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता. सारे ingredients देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं. Now I'll take some water and I'll make it into a smooth dough. As you can see, my pizza dough is now ready. It's nice and soft. I'll just sprinkle a little oil on top, just about 1 teaspoon. Spread it evenly. Cover it with a lid. And now I'll just keep it aside for about 3 to 4 hours so that it will rise. Basically, I have to take 1 chopped onion, finely chopped onion, puree of 2 medium-sized tomatoes, 1/3 cup of any tomato sauce that's available with you, handy with you, 1 teaspoon of finely chopped garlic, then I'm taking salt, carom seeds, red chili powder, sugar and fresh basil leaves. तो इन केस यू डोंट हैव फ्रेश बेसिल लीव्स आप लोग बेसिल पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और इंडिया में तो तुलसी पत्ता इज वेरी वेरी रेडीली अवेलेबल, यू कैन यूज दैट. अब हमने पैन रख दिया है गैस पे, इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. साथ में गार्लिक एंड द कैरम सीड्स, दैट इज अजवाइन, और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे. तो इसको मैंने अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई किया. देन आई एम एडिंग द अनियन टू इट एंड आई विल फ्राई इट फॉर अबाउट 1 to 1.5 मिनट, जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता. तो ये अनियंस जो है हल्के से फ्राई हो गए हैं. नाउ आई हैव एडेड द पिसा हुआ टमाटर, तो इसको अच्छे से स्टर करके इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें tomato sauce. Mix it properly. I'll let it cook for about 2 minutes. Now I'll be adding salt, sugar, red chili powder, black pepper and the basil और तुलसी लीव्स. तो अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं
It's not, you can skip the red chili powder, and if you're making it for yourself, you can make it as spicy as you want. So we'll just give it a quick stir, and now we'll add some water to it, just 3-4 spoons, and we'll let it simmer for another 2 minutes. पिज़्ज़ा सॉस अब रेडी है, तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ी एक्सेस पिज़्ज़ा सॉस भी बना के रख सकते हैं, एंड यू कैन ईजिली रेफ्रिजरेट इट फॉर अबाउट 2 वीक्स. बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू वांट टू डू अ क्विक पिज़्ज़ा. ऑल्सो यू कैन यूज़ इट एज अ डिप. आप इसको अगर फ्रिज में रेडी करके रखें. नाउ फॉर द फिलिंग आई हैव टेकन 2 tablespoons ऑफ processed cheddar cheese. You can take any brand, whatever is available. Plus I have taken half a spoon of white sesame seeds and about 1/4 spoon of oregano powder for flavor. We'll mix it and make it ready. अभी आप देख सकते हैं जो पिज़्ज़ा का डो हमने रखा था, इट्स अबाउट 4 hours नाउ, और ये राइस होके एकदम डबल साइज का हो गया है, और मेरी बाकी चीज़ें भी रेडी हैं. ये देखिए मेरी टॉपिंग है. सो टुडे आई एम यूजिंग corn, green and red bell peppers, green and black sliced olives, and broccoli for my pizza topping. Let's start rolling the base. So I will take half of this atta. Make a ball out of it. I'll roll it in the dry flour, आटा. इसको gently बेल के ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी चीज ऑरिगेनो वाली, ये हम इसमें डालेंगे. और जैसे हम पराठा बनाते हैं, स्टफ्ड पराठा, सेम वे वी आर गोइंग टू क्लोज दिस, सील इट. Put some dry flour on it and roll it gently. तो ये पिज़्ज़ा बेस जो है रेडी हो गया है. I'll take the plate जिसमें मैं इसको बेक करूँगी. I'll place it gently on it. ये हमने जो मैरिनेरा सॉस बनाई थी, I'll cover the base properly with the sauce. हो गया है. Now I'll be putting the topping. Some corn, some bell peppers, some broccoli, olives, Italian seasoning. ये आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं. एंड अ बिट ऑफ चीज. आई एम नॉट कवरिंग इट वेरी लिबरली विद चीज, रीजन बीइंग कि मैंने इसमें ऑलरेडी स्टफिंग में भी चीज डाला है. आपको अगर और चीज डालना है तो आप डाल सकते हैं. सो द पिज्जा इज रेडी टू गो फ्रॉम द प्लेट टू द ओवन. द पिज्जा इज गोइंग इनटू द ओवन एंड इट्स रेडी फॉर ग्रिलिंग. सो हियर वी आर, माई पिज्जा इज रेडी. इसको मैंने 20 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड में माइक्रोवेव में बेक किया है. एंड मैं जा रही हूँ अब अपना पिज्ज़ा खाने के लिए. सी यू अगेन सून नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय.